Good morning everyone and welcome to the class. We are doing a second chapter in civics, in geography, and the name of the chapter is globe, latitudes and longitudes. Okay. And under this chapter we have discussed some new terms like what is a globe, what is an axis, equator, and then we have seen what are parallels of latitude, the lines which are or we can say the circles which are drawn parallel to the equator are called parallels of latitude. And what is the need of these lines? These are imaginary lines. Whatever we are talking about, the axis, the equator, the parallels of latitude, everything is imaginary line. There no such line exists actually on the earth. It is only it is only our imagination. And why we imagine these lines? Because in order to make our knowledge more precise, and we need to locate places on the earth, and these latitudes help us to locate places on the earth. Okay. And as we have seen that the equator is the largest latitude, है ना? And when we move towards poles, the size of the latitude decreases. And we have also seen that equator as divides the whole earth into two equal parts. The upper part is called northern hemisphere and the lower part is called the southern hemisphere. And the lines, the circles which are drawn towards the north pole are called latitudes in the northern hemisphere, and the circles which are drawn towards the south pole are called latitudes in the southern hemisphere. And we have also discussed that these parallels of latitude have some degree, they have some value. Like equator, value हम कैसे decide करते हैं? How we measure the angle? So you have to understand, we have discussed all these things. So I am telling you again, ये जो north pole है, this north pole and equator makes an angle of 90 degree. Okay. And जैसे जैसे ये नीचे आएगा, डिग्री जो है वो आपका कम होता जाएगा, इट विल डिक्रीज. ओके. जैसे हमने देखा था कल की क्लास में, वी हैव डिस्कस, ये सपोज करिए ये हो गया हमारा 20 डिग्री, है ना? ये हो गया, दिस इज this is 40 degree, this is 60 degree. ये इस तरह से हम लोगों ने इसको किया था. तो ये आपको समझना है कि इक्वेटर का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि इक्वेटर एक सीधी लाइन है. तो ये सीधी लाइन के साथ क्या कौन सा डिग्री बनेगा? 0 डिग्री. जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, है ना? यहाँ पर जैसे ये 20 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे 40 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर ये फिर 90 डिग्री हो जाता है पोल्स के पास. ठीक है. इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दे रही हूँ. ओके. तो ये इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री, उसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है. और जब ये वाली जो एंगल है ये हमारी अज्यूम कर रहे हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, ये 20 डिग्री हुई, और ये जो डिग्री बना रहा है, दिस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज मेकिंग द डिग्री ऑफ 60 डिग्री. ये सपोज करेंगे ये बना रहा है 75 डिग्री, और ये जो नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री. और हमने ये भी देखा था कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम डिग्री में मेज़र करते हैं, साथ ही साथ उनके साथ हम वो किस हेमिस्फेयर में हैं. दे आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर. इट इज़ डिनोटेड बाय एन और एस. इफ इट इज़ रिटन 20 डिग्री एन,
it means we are talking about the parallel of latitude which makes an angle of 20 degree with the equator, and it is in the northern hemisphere. Okay, and if we are saying 20 degree south, what does it mean? It means that we are talking about the latitude which is making an angle of 20 degree with the equator in the southern hemisphere. And we have also seen why is it important to denote northern hemisphere or southern hemisphere by N or S. It is important to denote it. It is in which hemisphere, because we have seen that there may be two places which are located at the same latitude, but the hemisphere can be different, है ना. As we have seen in Maharashtra, Chandrapur is there, है ना. This in India, Maharashtra में Chandrapur is located on 20 degree latitude, and this where another country is there, Brazil, which is in South America, and the place is Belo Horizonte. This place is also situated on 20 degree latitude, but the difference is that the Chandrapur is on 20 degree north, and Belo Horizonte is in 20 degree south. This is the difference. And how latitude help us in locating the place, you can now understanding, है ना. अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि कैसे लॉन्गिट्यूड जो है वो हेल्प करता है, लैटिट्यूड जो है वो हमें हेल्प करता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने में, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट लोकेशन. In order to get the complete location, we need one more thing, जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग ये देखेंगे कि what are the important parallels of latitude. ठीक है, जो हमारे important parallels of latitude हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. So, important parallels of latitude. The first and the most important equator about which we have discussed is equator, है ना. Equator एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है. सबसे बड़ा इसकी जो साइज होती है वो सबसे बड़ा होता है. इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है. नॉर्थ पोल पे जो इक्वेटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री एन. और जो साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है उसकी जो डिग्री होती है दैट इज 90 डिग्री साउथ, है ना. ये हमने देख रखा है, वी नो अबाउट इट. नाउ वी विल सी दैट देयर आर सम अदर. अगर देखो सपोज करो, फिर से हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे अर्थ का, ठीक है. अब इसमें ये 0 डिग्री है, ठीक है. दिस इज इक्वेटर और ये 90 डिग्री है. तो अगर हम लोग यहाँ पर इफ वी वांट वी कैन ड्रॉ 90 सर्कल्स. यहाँ से 1 2 3 4 5 6. Actually, I cannot draw all the 90 circles, but you will have to understand it कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, दोनों तरफ अगर हम जाएं, अगर पहले सिर्फ हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जा रहे हैं तो इन दैट केस वी कैन ड्रॉ 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन द अपर डायरेक्शन. जब डाउनवर्ड आएंगे देन ओनली वी कैन ड्रॉ 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, isn't it? तो इस तरह से हम 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड वी कैन ड्रॉ. बट इन सारे 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में 180 जो नंबर है, 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं. इसमें से सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसमें से हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है जिनकी हम अभी
जिनके बारे में देखेंगे कि कौन से वो लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देयर कैन बी 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एक एक डिग्री के डिफरेंस पे, अगर हम आधी आधी डिग्री के डिफरेंस पे ड्रॉ करें तो वो 360 हो सकते हैं, है ना। तो ये कितने भी हो सकते हैं, बट हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है हम अभी उसको सिर्फ देख रहे हैं। वी विल बी कंसिडरिंग ओनली दोज लैटिट्यूड्स विच आर important for us. So first of all we are talking about a tropic of Cancer. ठीक है, so this is so first of all this is Earth, दिस इज इक्वेटर, है ना। अब जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट हमारा लैटिट्यूड है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड यू विल ऑब्जर्व कि ये जो हम सर्कल इसको ऐसे करते हैं, गोला करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इट्स नॉट प्लेन, ये सर्कल में जा रहा है, इसलिए इसका शेप ऐसा होता है। ओके, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है इसको हम क्या कहते हैं? दिस लैटिट्यूड इज नेम्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स नेम इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, अब अगर एक और वन मोर लैटिट्यूड इज देयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज आर्कटिक सर्कल विच इज हुज वैल्यू इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, एक और है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री नॉर्थ। दिस इज नोन एज आर्कटिक सर्कल। Okay, this is known as Arctic Circle. Okay, this is about the northern hemisphere, and now we will talk about the southern hemisphere. In the southern hemisphere we will see that same value 23.5 डिग्री का एक लैटिट्यूड होता है, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ था उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एंड ये इसका क्या नाम है? दिस इज नेम्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में है इट्स नेम इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, और इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में एक और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है विच इज इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, दिस इज इट्स वैल्यू इज 66.5 डिग्री साउथ एंड व्हाट्स इट्स नेम? इट्स नेम इज अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल था, नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल है। यू हैव टू मेमोराइज द नेम, अंटार्कटिक अंटार्कटिक सर्कल। ओके, और यहाँ पर आपका क्या है? नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है? साउथ पोल है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर। यू मस्ट ड्रॉ दिस फिगर इन योर नोटबुक। इसमें आपको यही समझना है 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल एंड 90 डिग्री नॉर्थ इज नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ इज साउथ पोल। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर हमने इन्हीं लैटिट्यूड्स को क्यों इम्पोर्टेंट माना है। व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग them more important than other latitudes? So according to these latitudes we will divide the earth on a different heat zones. Okay, now our next topic is heat zones of the earth.
heat zones of the earth. So now we will see heat zones of the earth. अर्थ के जो हीट जोन्स हैं उनकी हम बात करेंगे. हीट जोन्स का मतलब ये होता है, इट मीन्स दैट द each and every part of the earth does not receive heat in same amount. There is difference in the amount of the heat. Okay, why this difference is there, and why we need to divide the earth in different heat zones? Because we see that the ray of the earth is exactly overhead at least once a year on all latitudes, in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This is Tropic of Cancer. And this is Tropic of Capricorn. And this is equator. So what we find that between these two latitudes, 23 degrees north and 23.5 degree north and 23.5 degrees south, what happens that the midday sun is exactly overhead. किसी न किसी जो लैटिट्यूड्स हैं, इनके बीच में जो भी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, इनके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन पर जो सन का जो मिड डे सन है, बिल्कुल सन का जो सीधी रे जिसको हम कहेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट रे ऑफ द सन फॉल्स ऑन एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स. पूरे साल में कम से कम एक बार हर लैटिट्यूड पे सन का जो रे है वो बिल्कुल सीधा पड़ता है, फ्रॉम 23 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ. 23.5 नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच में कितने लैटिट्यूड्स होंगे? अगर हम 1 डिग्री के डिफरेंस पे देखें तो कितने लैटिट्यूड्स होंगे? 23.5 प्लस 23.5. व्हाट विल बी द आंसर? 23 हमारा 46 हो जाएगा एंड हाफ ऑफ 1 हो गया. तो इनके बीच में 47 लैटिट्यूड्स हैं. इन सारे लैटिट्यूड्स पे जो 47 लैटिट्यूड्स हैं, उन सारे लैटिट्यूड्स पे साल में एक बार कम से कम साल में एक बार इन सारे लैटिट्यूड पे सन का रे बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगा. और जब सन का रे स्ट्रेट पड़ता है तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है. सन का रे जब स्ट्रेट होता है, ठीक है, तो उससे क्या होती है कि जो जहाँ पर पड़ रहा है सन का रे, ठीक है, ये एरिया है जहाँ पर सन का रे आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, तो सन का रे इतने एरिया को ही कवर कर रहा है जब वो स्ट्रेट है ना. और अगर वो स्लैंटिंग हो जाएगा तो वो जो एरिया को कवर करेगा वो एरिया बढ़ जाएगा. लाइक now you see, you just try to understand, this is very important to understand, है ना. यहाँ पर जब सन का लाइट स्ट्रेट पड़ रहा है तो जो एरिया कवर हो रहा है इतनी लाइट इतनी है ना, इस लाइन से जो एरिया कवर हो रहा है वो सिर्फ इतना सा है. जब स्लैंटिंग लाइन पड़ रहा है तो जो एरिया ये लाइट कवर कर रहा है, ये एरिया हमारा यहाँ तक चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, तो गर्मी कम हो जाएगी. रे amount of heat is same, but what happens that the area covered by that amount of heat is increased. If the area increase then the temperature will decrease. तो जब भी स्ट्रेट एकदम सीधी सन का रे, जब सीधा सन का रे हम पर पड़ता है तो उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो लेसर एरिया को कवर करता है. और जब स्लैंटिंग हो जाती है तो उसका जो कवर्ड एरिया है वो बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस, कम हो जाता है कंपैरेटिवली. तो हम अभी किस बात पर डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग कि ये जो
23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच के जो लैटिट्यूड है, इन पे सन का रे पूरे साल किसी न किसी एक लैटिट्यूड पे सीधा पड़ता ही है, सीधा पड़ता ही है, बिल्कुल सीधा। और जब सन का रे स्ट्रेट पड़ेगा तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। दैट इज वाई दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन, जिसमें कि मैक्सिमम हीट, ये जोन जो है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है एंड इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। Why this area, this reason this area receives maximum heat? Because the ray of the sun is falling straight on any one of the latitudes which is situated between 23.5 degree north to 23.5 degree south. तो स्ट्रेट पड़ने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अब इसके ऊपर जितने भी लैटिट्यूड हैं, जितने भी लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है एंड 23.5 डिग्री साउथ के नीचे, जितने भी लैटिट्यूड, उन पर सन का रे कभी भी सीधा नहीं पड़ता है। द रेज ऑफ द सन नेवर फॉल्स स्ट्रेट। और ये जो सन का रे है, ये जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाता है, ये और भी ज़्यादा स्लैंटिंग होता जाता है ना। जब तक इस यहाँ पर सन का रे जो पड़ रहा है वो स्ट्रेट पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे जब हम जाएंगे तो सन का जो रे है वो कैसे पड़ने लगता है, वो स्लैंटिंग होने लगता है। और जब सन का रे स्लैंटिंग होगा तो जो एरिया कवर हो रहा है सन रे से, वो एरिया बढ़ता जाएगा। और जब एरिया जितना एरिया कवर्ड हो रहा है, दैट एरिया इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स कि वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्कल, दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये इन दोनों में हम देखते हैं क्या होता है कि सन का जो रे है वो स्लैंटिंग पड़ता है, और इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। एंड दीज जोन्स आर नोन एज टेम्परेट जोन। इन जोन्स को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। क्योंकि यहाँ पर सन का रे जो है वो स्लैंटिंग पड़ता है, और स्लैंटिंग पड़ने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो दीज बोथ रीजंस आर नोन एज टेम्परेट जोन। ओके, तो ये पूरा जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज टॉरिड जोन। ओके, फ्रॉम दिस टू दिस 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, दिस इज नोन एज टॉरिड जोन। उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो जाना जाता है टेम्परेट जोन के नाम से, और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ, ये जो है ये टेम्परेट जोन है, बिकॉज यहाँ पर सन की लाइट स्लैंटिंग पड़ती है। अब इसके आगे के जो एरियाज हैं, अगर हम आगे की जगह को देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि सन का रे और भी ज़्यादा स्लैंटिंग होता जाता है। आर्कटिक सर्कल की तरफ हम बढ़ें या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या अंटार्कटिक सर्कल की तरफ बढ़े सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ती जाती है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट कि जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन का जो रे है वो बिल्कुल भी पहुँच ही नहीं पाता है, हॉराइजन के ऊपर नहीं जा पाता है, ओवरहेड कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा स्लैंटिंग लाइन होती है, और इस कारण से
हीट बहुत ही कम होता है, और इसलिए इसको हम कौन सी जोन कहते हैं? दिस इज नोन एज फ्रिजिड जोन, इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। ओके, दिस इज नोन एज फ्रिजिड जोन। So these are the 3 heat zones of अर्थ, जहाँ जो कि आपको ये समझना है। इसमें एक चीज़ और अभी समझने की है कि ज़्यादा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर कि आखिर क्यों जब स्लैंटिंग लाइन होती है, जब सन का रे स्लैंटिंग में आता है तो कम गर्मी होती है, जब स्ट्रेट लाइन होता है तो ज़्यादा गर्मी होती है। आप देखोगे एक आपकी बुक में इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक आप टॉर्च ले लो, है ना, और उस टॉर्च से आप क्या करो, अगर सीधे उस टॉर्च को आप एक कार्डबोर्ड पे लगाओगे, ठीक है, एंड जस्ट सन की जगह हमने टॉर्च को लिया है, ठीक है। सन का रोल कौन प्ले कर रहा है? द रोल ऑफ द सन इज प्लेड बाय टॉर्च एंड वन कार्डबोर्ड इज देयर विच इज लाइक द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, सो दिस टॉर्च इज देयर, टॉर्च से लाइट जो है वो ऐसे पड़ रही है ना, टॉर्च की लाइट ऐसे जा रही है। अब हम क्या देखते हैं, इसके सामने एक हमने कार्डबोर्ड लगा दिया, तो ये जो टॉर्च की लाइट है वो जिस एरिया को कवर कर रही है वो इतनी है ना, दिस इज द एरिया विच इज कवर्ड बाय द लाइट ऑफ द टॉर्च। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टॉर्च वैसे ही है हमारा, टॉर्च में कोई डिफरेंस नहीं आया, टॉर्च की लाइट ऐसे जा रही है। हमने क्या किया, दैट दिस सरफेस हैज़ बीन स्लैंटेड, इस सरफेस को हमने स्लैंट कर दिया, क्योंकि अगर हम अर्थ को देखें तो क्या है, अर्थ एक स्फेरिकल है, तो बीच में तो जो अर्थ का जो पोर्शन है उस पर स्ट्रेट लाइट पड़ जाती है, लेकिन ऊपर में जो अर्थ का सरफेस है वो स्लैंटिंग हो जाता है ना, तो इस कारण से जो सन का रे है वो सीधा नहीं पड़ पाता है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास कार्डबोर्ड था उसको हमने टेढ़ा कर दिया, ठीक है, उसको हमने स्लैंटिंग कर दिया। तो अब हम क्या देखते हैं, जो टॉर्च की जो लाइट थी, जो जब स्ट्रेट है कार्डबोर्ड तो वो इतने एरिया को कवर कर रही है, लेकिन जब कार्डबोर्ड हमारा स्लैंटिंग हो जा रहा है तो यही लाइट जो है वो इतनी एरिया को कवर कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें, इस एरिया को, इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम देते हैं, एंड दिस पॉइंट इज गिवन द नेम ऑफ सी एंड दिस पॉइंट इज गिवन द नेम ऑफ डी। तो ए बी और सी डी, इनमें कौन बड़ा है? दे आर नॉट इक्वल, है ना, वो बराबर नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि ए बी इज स्मॉलर देन सी डी, सी डी बड़ा है। तो जब टॉर्च क्या उतनी ही लाइट बड़े एरिया में जाएगी तो कम उससे लाइट होगी, कम उससे हीट होगा, है ना। तो यही रीज़न है, जब सन का जो रे है स्लैंटिंग पड़ता है तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एरिया में फैल जाता है, जिसके कारण कम गर्मी होती है, और जब सन की लाइट सीधी पड़ती है तो वो कम एरिया में होता है, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमारे टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर है दैट इज़ मॉडरेट, और जब हम फ्रिजिड जोन में पहुंचते हैं, पोल्स के पास पहुंचते हैं, तो वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, जहाँ पर कि सन कभी भी ओवरहेड होता ही नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑलवेज हॉराइजन के आगे कभी वो नहीं बढ़ पाता है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमने समझ लिया, ठीक है। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो प्लेस को लोकेट करते हैं, और लैटिट्यूड से हम ये समझ पाते हैं कि वाई देयर इज़ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। हर पार्ट पे एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो नाउ यू आर able to understand this difference of temperature, the reason for this difference of temperature. And now our next topic is latitudes, longitudes. We have done latitudes, है ना। Now our next topic is
longitudes. जब हमने लैटिट्यूड देखा था तो क्या था, लैटिट्यूड्स जो थे वो एक इमेजिनरी लाइन थे, तो इन अ सिमिलर वे longitudes are also imaginary line, and this imaginary line is not these imaginary lines are not horizontal but they are vertical. They are meeting from North Pole to South Pole or from South Pole to North Pole. We will continue with this discussion in the next class.